Hello students, how are you? This is Malik sir. MCQs in mathematics for class 10th of chapter polynomials, video number 2. Question number 1. If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 6x plus k and 3 alpha plus 2 beta is equal to 20, then the value of k. Students, given है बेटा अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के एंड द रिलेशन बिटवीन द जीरोज दिस. तो गिवन है आपको कि गिवन अल्फा and beta are zeros of x square minus 6x plus k. So then sum of zeros is equal to minus 6 upon 1. Then alpha plus beta is equal to 6. Multiply on both sides by 3. This implies that 3 alpha plus 3 beta is equal to 3 6 18. Equation number 1. And given a 3 alpha plus 2 beta is equal to 20. Equation number 2. We can calculate value of alpha and beta, equation 1 minus equation 2. You can change the sign plus minus plus minus plus minus. 3 alpha प्लस का है और माइनस 3 अल्फा माइनस तो देन कैंसिल. तो 3 बीटा में से माइनस 2 बीटा जाएगा तो बीटा इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू आ गया बेटा आपका माइनस के 2. देन बीटा इज इक्वल टू 2. तो देन from 3 alpha plus 2 beta is equal to 20. तो आप बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए. 3 अल्फा प्लस 2 इंटू माइनस के 2 इज इक्वल टू 20. देन 3 अल्फा इज इक्वल टू 20 प्लस 4. तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 24/3. तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24. तो अल्फा इज इक्वल टू आपका आ गया 8. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? यू नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c upon a means 1. Then alpha is 8 and beta is minus 2. Then put alpha is 8 and beta is minus 2. This is equal to k upon 1. This implies that k is equal to minus 16. This is your required answer. Then option number C is right answer. Question number 2. Alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus in bracket k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 such that alpha plus beta is equal to alpha beta by 2. Then the value of k. Students, alpha and beta are the zeros of the polynomial this and relation between the zeros this value beta. So find the value of k. First of all beta, we find sum of zeros. Then sum of zeros is alpha plus beta is equal to minus in bracket b. b means minus k plus 6 upon a. a means x का coefficient beta. तो is 1. Then you can calculate alpha plus beta is equal to k plus 6 because minus minus plus. Then equation number 1. And you can find the product of zeros.
then alpha into beta is equal to c upon a. C means 2 into 2k minus 1. 2 into 2k minus 1 upon a is 1. Then alpha into beta is equal to 2 to the 4k minus k 2. This and equation number second. Given है बेटा, given alpha plus beta is equal to alpha beta upon 2. Then alpha plus beta is k plus 6 is equal to alpha into beta is 4k minus 2 upon 2. Then k plus 6 के अपॉन में क्या है बेटा 1. Then you क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2k plus 2 6 12 is equal to 4k minus 2. अब अरेंज कर लीजिए आप. 2k 4k को इधर शिफ्ट करेंगे आप, माइनस का 4k इज इक्वल टू माइनस 2 एंड इज इक्वल टू इधर आएगा आपका माइनस का 12. तो कितना बचता है आपके पास, माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस का कितना आ गया आपका माइनस 14. माइनस से माइनस क्या होता है, कैंसिल. देन k इज इक्वल टू आ गया आपका 7. तो दिस ए ऑप्शन इज राइट. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. द जीरोज ऑफ द polynomial 7x square minus 11x upon 3 minus 2 upon 3 are. स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं एक ट्रिक आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी आप इस क्वेश्चन को दोबारा उसी ट्रिक से करते हैं आप. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको प्रॉपर एलसीएम लेके पोलिनोमियल फॉर्म में ले लीजिए. तो एलसीएम इज 3. तो देन 3 7 जा 21x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 2. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 बेटा आपका कॉमन हो गया है, तो आपके पास हो गया 21x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 2. अब आप क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करिए. 21 2 जा 42 है ना, और 42 के आप फैक्टर करें कि आपका 11 आ जाए. तो कितना होगा आपका ऐसा पॉसिबल, ये है बेटा आपका. तो आपका कैसा आ जाएगा, 14 3 जा 42 एंड 14 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा आपका. तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि माइनस का लाना है आपको. तो बेटा 14 और 14 में 3, और आपको चाहिए माइनस की वैल्यू वाले 1 में, तो आपको क्या करना होगा, माइनस का 14 लेना होगा और प्लस का 3 लेना होगा. तो आपके कितना आ जाएंगे, माइनस का 14 एंड 3. तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हैं, सी एस मीन्स चेंज साइन. माइनस 14 है तो प्लस 14 एंड बेटा आपका प्लस 3 है तो माइनस का 3. अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली बात ये होती है कि बेटा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आपके पास 21. तो आप क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आप इन दोनों वैल्यूओं को डिवाइड कर देंगे. तो डिवाइड कैसे कर देंगे आप, 14 बाय 21 एंड माइनस 3 बाय 21. अब इसको कैलकुलेट करके देखें आप, तो कितना आ रहा है आपका आंसर, 7 2 जा 14 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3 और बेटा 3 7 जा 21. तो आंसर इज कितना आ गया आपका 2 अपॉन 3 और आपका आ गया माइनस के 1 अपॉन 7. आप देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका इसके अकॉर्डिंगली, 2 अपॉन 3 एंड माइनस 1 अपॉन 7. तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है. क्लियर है ये टॉपिक आपको स्टूडेंट्स. जो मैंने बताया आपको कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे आप ये जो वैल्यू आती हैं उनको डिवाइड कर देना है. उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी वो आपका ऑप्शन में मैच हो जाएगी बेटा. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रखा है हमने कि एक क्वेश्चन जरूर 100% केस स्टडी बेस्ड का क्वेश्चन आता है, वो चाहे किसी भी चैप्टर का हो सकता है आपका. तो मैं पॉलिनोमियल का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको. इसमें गिवन है बेटा कि ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गोट बेंट एज सो इन द फॉलोइंग फिगर. इट फॉलोड अ मैथमेटिकल शेप
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या है कि आपको एक इलेक्ट्रिकल वायर दिया है और वो आपका एक बेंट है जो हमको फिगर में शो किया हुआ है, ये वाला आपका, ठीक है। और ये इसके एक मैथमेटिकल शेप है और हमें जो ऑप्शन नीचे आपके क्वेश्चंस दिए हैं उनके हमको आंसर देना है। जैसे आप द शेप इन द विच द वायर इज बेंट, कहने का मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो फिगर दिया हुआ है ये जो किस टाइप का शेप क्रिएट कर रहा है। तो याद रखना आप, जब भी कभी आपका दो टाइप का पैराबोलिक फॉर्म होती है, एक तो होता है आपका अपवार्ड पैराबोलिक और एक होता है आपका डाउनवार्ड पैराबोलिक। इसको बोलते हैं आप अपवार्ड पैराबोलिक और उसको बोलते हैं आप डाउनवार्ड पैराबोलिक। आप देखते हैं कि ये जो आपका फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये किस टाइप का है। देखो एक पैराबोलिक टाइप का बन रहा है ना आपका, देखो ग्राफ को देखो यहाँ से ध्यान से, ये कौन सी शेप का आ रहा है, एक पैराबोलिक टाइप का है। और कौन सा पैराबोलिक है, अपवार्ड। तो ऑप्शन में की बने आपको कि ये स्पाइरल शेप का है फिगर, या इलेप्टिकल है, या पैराबोलिक है, लीनियर है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट बेटा, दिस इज शेप इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोलिक। तो ये कौन सी शेप है आपकी, पैराबोलिक। इसको हिंदी में बोलते हैं परवलीय शेप होती है ये आपकी। और पैराबोलिक की दो टाइप होती हैं, एक अपवार्ड पैराबोलिक और एक होता है डाउनवार्ड पैराबोलिक। तो ये कौन सा पैराबोलिक है आपका, अपवार्ड पैराबोलिक। ओके, इसी का केस स्टडी बेस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ द वायर। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में इस बताना है कि ये आपको फिगर देख के बोलना है कि इसके फिगर में कि कितने जीरोज हैं, आर देयर फॉर द पोलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द शेप ऑफ द वायर। तो शेप तो अभी आपने पता किया है कि कौन सी शेप आ रही है इसकी, पैराबोलिक टाइप की शेप की आपकी, है ना। तो आपको बताना है कि इसके कितने जीरोज हो सकते हैं। तो आप देखो आपका जो ग्राफ दिया है इसमें आप देखो कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट किया हुआ है उसने। एक तो काटा है इसने -1 पर और एक काटा है आपको इसने 3 पर। तो आपके कितने जीरोज आ रहे हैं इसकी, आपके जीरोज आ गए 2। एक तो -1 है और एक 3 है, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करा है, ये कट करा है उसने आपका -1 और 3 पर, क्योंकि ये कौन सी शेप है, पैराबोलिक टाइप की शेप होती है आपकी। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, देखो ये बिना कैलकुलेटिंग किए हुए क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितने जीरोज हो सकते हैं इस ग्राफ के जीरोज हो सकते हैं आपके 2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना आपके फिगर से ही आ जाता है, जिसको नॉलेज अच्छी होती है वो जल्दी से कैच कर लेता है, क्योंकि आपका जो ग्राफ है ये आपका कि एक्स एक्सिस पर कितने टाइम्स कट कर रहा है, 1 और 2 टाइम्स कट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी केस बेस्ड स्टडी का जो क्वेश्चन है 3। ये कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग बाय द वायर आर, यानी कि जो आपका ये वायर गिवन है ना, ये जो वायर जो पैराबोलिक शेप बना रहा है, ये पूछ रहा है कि इसके कितने 2 जीरोज तो हैं, ये तो कंफर्म हो गया कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। और आपको ये बताना है कि कौन कौन से जीरोज हैं। तो आप देखें कि एक्स एक्सिस पर कहाँ कहाँ कट कर रहा है ये पैराबोलिक जो ग्राफ है आपका। एक तो कट कर रहा है -1 पर और एक कट कर रहा है आपका कहाँ पर, 3 पे कट कर रहा है। तो इसलिए इसके जीरोज कौन कौन से हो जाएंगे, एक -1 और एक आपका 3। तो ऑप्शन देखो आप, डायरेक्ट ऑप्शन से जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। देखो कौन कौन से ऑप्शन है कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग बाय द वायर आर। तो कितना आ रहा था आपका, एक -1 आ रहा था और एक आपका 3 आ रहा था। ऑप्शन है कहीं ऐसा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आया आपको बच्चे। देखो स्टूडेंट्स आप फिगर देखें एक बार और कि पैराबोलिक जो फिगर है आपका वो कहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर। एक तो -1 पे कट कर रहा है और एक आपका 3 पे कट कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन मैच हो जाता है आपका ऑप्शन बी, -1,3 पे। क्लियर है ना बच्चे। ओके, क्वेश्चन नंबर है इसी का 4th। द एक्सप्रेशन क्या गिवन है कि द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द वायर इज, कहना चाहता है कि जो आपका ये जो ग्राफ है ना, ये जो फिगर बना है पैराबोलिक, ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि किस टाइप की किस इक्वेशन का ग्राफ है आपका, आपको ये बताना है।
तो स्टूडेंट्स आपको तो जीरोज पता चले गए हैं ना कि आपके कौन कौन से जीरोज हैं इस ग्राफ के, एक -1 और एक 3। तो इसका मतलब है कि ये तो आपका हो गया अल्फा, है ना बेटा, और एक ही हो गया आपका बीटा, क्योंकि दो जीरोज तो मुझको मिल गए, क्योंकि पैराबोलिक जो होता है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ होता है। तो -1 पे कट कर रहा है तो दिस इज एन अल्फा, एंड 3 पे कट कर रहा है ये बीटा है। नहीं तो हमारे बेटा यहाँ पर ऑप्शन से भी मैच हो रहा है कि इसके दो जीरोज आ रहे हैं, है ना। कितने जीरोज आ रहे हैं? दो। कौन कौन से? एक -1 और एक 3। तो एक जीरोज तो अल्फा हो गया है और एक जीरो जो हो गया आपका बीटा। तो यहाँ पे क्या देख रहा है कि वी सी इन फिगर अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू 3। तो अब इसके बाद आप क्या करते हैं, आप निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1 प्लस 3, तो इज इक्वल टू आ गया आपका 2। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के देखिए आप, -1 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? -3। अब आप अच्छे से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन आएगी वो आपकी होगी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होता है आपका x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दिस इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज इज 2, तो -2x एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -3। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर? आपका प्लस माइनस -3। तो कौन सा हो रहा है आपका पोलिनोमियल? x² माइनस 2x माइनस 3। तो विच ऑप्शन इज आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी इज राइट बेटा। देखिए x² माइनस 2x माइनस 3, x² माइनस 2x माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ x² प्लस 5x प्लस 8। कैसे टाइप का पोलिनोमियल है अपने पास? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आप अच्छे से जानते हो कि ये जो पोलिनोमियल है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी ax² प्लस bx और प्लस c। देन x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1। तो आपका a की वैल्यू क्या है? 1, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर? 5। देन c क्या है आपके पास? 8। आपको सम ऑफ जीरोज निकालना है। तो आप अच्छे से जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। ओके, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b इज 5 एंड a इज 1। तो देन बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5। तो विच ऑप्शन इज -5? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके बेटा, नंबर 6। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस k सच दैट α² प्लस β² प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। देन k इज इक्वल टू वाट? आपको क्या करना है, अल्फा बीटा जीरोज गिवन है किसके? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है आपके पास 2x² प्लस 5x प्लस k। तो कैसे करते हैं आप देखो ध्यान से। गिवन है आपको 2x² प्लस 5x प्लस k। अगर इसका कंपैरिजन करें इसके साथ में आप ax² प्लस bx प्लस का c, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि k की वैल्यू तो हो गया आपके पास c, और बेटा b की वैल्यू हो गया आपके पास 5, और a की वैल्यू क्या है आपके पास 2। तो देन वी कैन फाइंड सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। -b मीन्स 5, a इज x² का कोफिशिएंट a होता है, तो हो गया आपका 2। तो ये तो आपकी एक कंडीशन बन गई यहाँ पर आपके। ओके, एंड सेकंड है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा इजिकल टू क्या होता है आपके कि c/a। c मीन्स k, a इज 2। कंडीशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, जो आपको
कंडीशन दी है ना रिलेशन बिटवीन जीरोज, तो उसकी हेल्प से हम के की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे आपको क्या है गिवन, आपको गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अपने पास से एक अल्फा बीटा प्लस कर देता हूँ और एक अल्फा बीटा को माइनस कर देता हूँ और इज इक्वल टू 21/4। तो आप क्या देखते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ये आपके पास दोनों जुड़े के 2 अल्फा बीटा और माइनस हो जाएगा आपका अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 21/4। ओके, देन आप देखें यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी बन गई है आपकी, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो देन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब आप कैलकुलेट करें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपके पास -5/2, तो देन पुट करें इसमें आप -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज k/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 21/4। अब आगे देखिए कैलकुलेशन आप यहाँ से, -5 का होल स्क्वायर 25 है ना, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। 4 और 2 का एलसीएम हो गया आपके पास 4, तो 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 21/4। आप अच्छे जानते हो जब इक्वल टू में सेम वैल्यू होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो -2k इज इक्वल टू 21। इस 25 को इधर शिफ्ट करें तो माइनस आ जाएगा आपका कितना 25। तो आपके पास क्या आती है वैल्यू, -2k इज इक्वल टू आ गया आपके पास -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन k इज इक्वल टू आ गया आपका पास 4/2, 2 1 2, 2 2 4। तो क्या निकल के आता है आपके पास यहाँ k की वैल्यू, k की वैल्यू आती है आपकी k इज इक्वल टू 2। ये आपका ऑप्शन मैच करता है आपका। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपसे, ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट आंसर। ओके, आपको क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आता है आपका डी, जो हमारी कैलकुलेट वैल्यू में के की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7। A quadratic polynomial whose zeros are 5 and -3. A quadratic polynomial whose zeros are 5 and -3. क्या बताना आपको, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ जिसके जीरोज कितने आते हैं आपके पास 5 हो एंड -3 आ रहा है। तो आप ऑब्जर्व करके देखें कि एक जीरोज तो ये आपको गिवन है, तो ये तो अल्फा है आपके लिए, और दूसरा जीरोज ये गिवन है आपके लिए क्या है, बीटा आ रहा है। आप इनका दोनों का सम और प्रोडक्ट निकाल के देखें, आप निकालें एक बार कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 प्लस -3। कैलकुलेट करके देखो आप कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, आपकी वैल्यू आएगी 2, यानी अल्फा प्लस बीटा इज 2। तो अल्फा इंटू बीटा भी निकाल के देखें आप, अल्फा इज 5 और बीटा इज -3, तो +5 और -3, तो प्लस माइनस -5 3 जा 15, यानी आपके पास सम ऑफ जीरोस 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जितना आ रहा है -15। अब आप क्या देखते हैं, आप अपने ऑप्शन को देखिए आप ध्यान से, भाई क्वाड्रेटिक सारे पोलिनोमियल्स हैं आपके, आप देखिए इनमें से कौन सा तो सम ऑफ जीरोस 2 दे रहा है और कौन सा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -15 दे रहा है। जो दोनों ये वैल्यू दे देगा वही ऑप्शन आपका राइट है। देखो कैसे यहाँ पे निकाल के देखिए, आप पहले इसकी बात करें, इसके लिए निकालें कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है फॉर्मूला, -b/a -k2 ए क्या है यहाँ पर आपका एक्स का कोफिशिएंट 1, तो क्या आ गया -k1, तो इज इक्वल टू क्या हो गया -2। सम ऑफ जीरोस तो -2 आ रहा है, बट हमारा तो क्या था +2, तो ये तो ऑप्शन आपका मैच नहीं हो पाएगा। अब देखें सेकंड वाले के लिए, आप इसका निकालें सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है माइनस है ना, माइनस तो अपना आइडेंटिटी रूल के अकॉर्डिंग आता है, और एक माइनस है बी की वैल्यू यहाँ पे -k2 और एज क्या है यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1,
तो अपॉन 1 सोल्व करके देखिए, माइनस माइनस प्लस तो इजिकल टू आ गया 2। यस, सम ऑफ जीरोस तो सही आ गया आपका, है ना। अब एक बार इसका इसी का ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेकआउट करें, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है सी अपॉन ए, सी कितना आपके पास 15 और ए क्या आपका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, तो देन 15 को 1 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है आपके पास 15। देखो आप सम ऑफ जीरोज भी 2 आ गया है अकॉर्डिंग टू, है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 15 आ रहा है, तो हमारा भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ रहा है माइनस का 15, ठीक है। बट हमारा भी माइनस 15 था, यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस का 15, तो आपका ये भी ऑप्शन मैच नहीं होता है आपका। तो अब इसको और चेकआउट कर लेते सी ऑप्शन को, देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे निकाले सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है आपके पास, माइनस तो अपना रूल में आता है, और माइनस का बी है आपके पास, और एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है ए 1 होता है, तो अपॉन का ए है, तो सोल्व करके देखें तो इजिकल टू क्या आ रहा है आपके पास 2। ओके, एंड अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेकआउट और करके देखें आप, क्या होता है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 15 आ रहा है, माइनस का 15, और ए क्या आपके पास 1, तो इजिकल टू क्या आ गया आपके पास माइनस का 15। तो देखो सम ऑफ जीरोज इज 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज माइनस 15, और हमारे क्या आते हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोज इज 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 15, तो ऑप्शन आपका कौन सा सी इज राइट आंसर आपका। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इस कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे ना तो सेकंडों में आंसर आ जाएगा, मेरे को समझाना पड़ता है ना, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग पा रहा है। अगर जब आप इसको सीख जाएंगे ना तो डायरेक्टली आप ऑप्शन को फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा हाँ स्टूडेंट्स, एक और इसका कंसेप्ट होता है, कौन से वाला है कि आप रूल तो जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब हो जाएगा, जब आपका होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी तो होता है ना आपका एक रूल। तो आपने ऑलरेडी सम भी निकाल लिया है और आपका प्रोडक्ट भी पता है, तो और यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो करें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या आ रहा है आपके पास 2, तो यहाँ पे हो गया माइनस के 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है माइनस का 15। हाँ देखो इससे बहुत जल्दी हो गया, ये वाला भी बेस्ट है आपका, प्लस माइनस माइनस 15, ठीक है। एट ए टाइम जो भी आपका लॉजिक काम कर जाए उससे कर लेना। देखो कैसा पोलिनोमियल कौन सा है आपके पास, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इसके दो कंसेप्ट हो गए आपके, बाय ऑप्शन एंड बाय हमारे रूल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k सच दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा देन द वैल्यू ऑफ के। देखो स्टूडेंट्स, आपके पास एक पोलिनोमियल गिवन है और पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज भी मालूम है अल्फा बीटा, और इनके बीच का रिलेशन भी दिया है आपको। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कंपेरिजन करो किसके साथ, के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3k, आप कंपेरिजन करें किसके साथ में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए की वैल्यू आपके पास के, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 3k, ठीक है। अब निकालना है आपको क्या, सम ऑफ जीरोज। तो फाइंड करें आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी इज with sign -2 and a is k, then calculate करें माइनस माइनस प्लस, तो 2/k, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2/k है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकालें आप, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c अपॉन a, है ना। तो c की वैल्यू क्या आपके पास 3k, तो 3k अपॉन, ओके, एंड a इज क्या है आपके पास, ए है आपके पास में के, ठीक है। तो के से क्या हो जाता है कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3। अब आ जाइए अपने रिलेशन जो दिया था हमको, ये वाला रिलेशन जो पता है ना आपको, इसका यूज करते हैं हम लोग। कैसे करना है देखो आपको, अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास, अल्फा प्लस बीटा है आपके पास 2/k, तो पुट कर दीजिए 2/k इज इक्वल टू, है ना, और अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला आपने 3, तो इज इक्वल टू आ गया आपके पास 3, तो 3 के अपॉन में क्या ले लें आप 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2 इज इक्वल टू 3k, देन k की वैल्यू कितनी आ रही है कैलकुलेट करके देखेंगे आप 2/3, तो आपकी k की वैल्यू है आपकी 2/3। तो ऑप्शन से मैच करके देखिए कौन सा ऑप्शन है आपको ऐसा, 2/3 मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल की हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं और इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।